हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फोटोन स्टार। इस चैनल में हम क्या करेंगे ना, जो सेकेंड ईयर जो कोर्स होता है फिजिक्स का, जो अकॉर्डिंग टू काउंसिल सिलेबस, उसके हिसाब में इसमें क्लास करेंगे। आज की क्लास सेशन में हम क्या पढ़ेंगे ना, हम जो रोज देखते हैं लाइट, तो लाइट कैसे ट्रैवल करता है उसके बारे में आज पढ़े हैं। सेकेंड ईयर में यूनिट 7 करके नाम है, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड लाइट, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड लाइट के बारे में। क्या है ना, नाम क्या है इसका यूनिट का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस यूनिट में क्या पढ़ेगा, लाइट। लाइट क्या होता है ना, लाइट वो कैसे ट्रैवल करते हैं, उसका नेचर क्या होता है, उसे हम कैसे देखते हैं, इसको हम कहते हैं ना नेचर कहते हैं। लाइट का दो नेचर होता है, डुअल नेचर मींस दो नेचर होता है। एक होगा उसका पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या होगा उसका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर होता क्या होता है ना, लाइट और पार्टिकल नेचर में दो इफेक्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला इफेक्ट कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना, it is a process in which electrons are emitted from the metal surface by applying light on it. That process is to be photoelectric effect. And second process is Compton effect. In this process, 12 high energy photon like X-ray or gamma ray frequency 12 collide with free electron. Then the field after collision, free electrons are goes to the large distance of wavelength. That effect is said to be Compton effect. These two effects, photoelectric effect and Compton effect, are shows the particle nature of light. You can see the diagram of photoelectric effect. This is the metal surface and it is the initial light. When light is coming from the source, it falls on the metal surface, then the electrons are emitted. That process is called photoelectric effect, and this is the diagram of Compton effect. This shows the particle nature of light effect. तो हम नेक्स्ट चलेंगे वेव नेचर। लाइट शोज आल्सो शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। कहाँ दिखाई देता है ना, जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम यूनिट 6 में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें क्या है, एक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और एक पोलराइजेशन है। इंटरफेरेंस क्या है ना, according to superposition principle of wave, when two waves are combined to each other, then it produces a single wave, that is shows the wave nature of light. You can see the picture of when a laser light comes to a state, then it combined to produce one single wave, that is interference of light. Then what is diffraction? Diffraction is the bending of light. Bending of light means when it is coming from one medium to another medium, if the light changes its path, then the process is said to be diffraction of light. You can see it, diffraction of light. When it coming from this, then it comes a wave type of nature, that is shows the wave nature of light. Then the next process is polarization of light. What do you mean by polarization of light? Polarization of light means when UV light coming from the sun, the both all our light are vibrate in all directions. If we place inside or within a unpolarized light, if the light travels in only in one direction, or that will be in transverse direction, that process is to be polarization of light. जैसे हम देखते हैं टॉर्च वगैरह हो गया, जैसे देखते हैं ये है तुम्हारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डॉटेड लगा है, और ये है तुम्हारा वेव नेचर ऑफ लाइट। तो हमें क्या पढ़ेगा, लाइट का डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर जो दिखाई दे कहाँ पे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट है, और वेव नेचर वो किसमें दिखाई देना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में दिखाई दे। तो नेक्स्ट चलेंगे, तीसरा चलेंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम सबको पता है कि मेटल के बारे में हम सबको पता है। मेटल क्या होता है, मेटल के अंदर हम फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, free electrons move freely or loosely bound within the metal, but
it cannot live without it. It cannot or it live without metal surface by applying some external energy. और free electron means free होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है inside the metal that the electron is said to be free electron. You can see the if a metal plus signs are positive ions and the neighbor are free electrons. नेक्स्ट, जैसे बताया फ्री इलेक्ट्रॉन हम मेटल से कैसे बाहर करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन इज द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और एजेक्टेड और एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग द सम एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन आर फोर टाइप्स. वन इज thermionic emission, second one is photoelectric emission, third one is field emission, and the fourth one is secondary emission. By according to this name, you can remember the different types of emission. Next, यह क्या तुम्हारा, अगर हमारे चैनल तुम नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाए. फोटोन स्टार नाम से आपको सर्च करना है यूट्यूब में. यूट्यूब सर्च कर देता हूँ, फोटोन स्टार दिखाई देगा तो उसको हम सब्सक्राइब कराना है. तुम्हारे नीडी समय में जैसे कि काउंसिल एग्जाम आगे है, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कराना है और कोई भी अगर वीडियो आएगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी कौन सा डालना. नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है कैसे क्या क्या होता है, चार टाइप के होते हैं. थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, थर्मो मींस हीट. अगर मेटल सरफेस हम हीट अप्लाई करेंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा, उस प्रोसेस हम क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक एमिशन. आप देख सकते हैं एक मेटल है, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पे हम हीट अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. दैट प्रोसेस इज टू बी थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन मींस it is the process in which electrons are emitted from the metal surface by applying heat on it. The emitted electrons in the thermionic emission are called the thermions. Emitted electrons are said to be thermions in thermionic emission. And the next emission is photoelectric effect. Photo means लाइट. अगर मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चल जाएगा, उस प्रोसेस हम क्या बोलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या बोलेंगे हम, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग लाइट ऑन इट. अगर लाइट अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आप देख सकते हैं ये मेटल सरफेस लाइट पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. और थर्ड वन क्या है ना, फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन और उससे हम क्या बोले, कोल्ड एमिशन. कोल्ड एमिशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग स्ट्रांग इलेक्ट्रिक. स्ट्रांग इलेक्ट्रिक अगर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे ना, फील्ड एमिशन और कोल्ड एमिशन. आप देख सकते हैं पिक्चर है, हमें मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, field emission or cold emission. And the electron emitted are called field electron. And the last one is secondary emission. Secondary emission is the process in which electrons are emitted by the bombardment of charged particles. Charged particles, if the positive charge or negative charge, high speed of electron. High speed of electron if collide with free electron, then the free electrons are emitted outside the metal surface. That process is to be secondary emission. The bombardment charged particles are said to be primary electron, and the emitted electron in secondary emission are called secondary electron. These all are about the emission of electron. One is क्या हो गया तुम्हारे पास, पहला क्या हो गया, थर्मियोनिक एमिशन. सेकंड वन इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. थर्ड वन इज फील्ड एमिशन एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी एमिशन. आपको नाम कैसे पता चला है, थर्मियोनिक एमिशन मतलब हीट अप्लाई करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को लाइट अप्लाई करेंगे, और क्या होगा, फील्ड एमिशन अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सेकेंडरी एमिशन
बॉम्बार्डमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये होगा तुम्हारा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन हम कैसे मेटल से बाहर करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है? इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू escape or emitted the electron from the metal surface is called work function। वर्क फंक्शन में क्या है? कौन से सिंबल डिनोट करते हैं? या फाई नॉट और ओमेगा और ओमेगा नॉट। इसका यूनिट क्या होना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जूल हो जाएगा और वाट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁹ जूल हो जाएगा। इट्स वैल्यू, वर्क फंक्शन वैल्यू क्या करेंगे ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल। सो इट्स वैल्यू वैरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं आप, सोडियम का क्या हो जाए 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल्युमिनियम जैसे हो गया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लैटिनम जैसे हो गया 4.5 और 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे हो गया। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है ना, इट इज द नथिंग बट द टाइप ऑफ और ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फाई इक्वल टू h nu naught where h is the Planck constant and its value is 6.63 into 10⁻34 joules in second and nu naught is equal to threshold frequency and phi is the work function। next क्या है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम सभी को पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड क्या है? इट इज ए पॉइंट और लेवल एट व्हिच something changes or something start is called threshold। तो threshold frequency क्या है ना, it the absolute minimum frequency of electromagnetic radiation at which electrons are emitted from the metal surface। अगर इससे जो इंसिडेंट लाइट आता है सन से, अगर इससे भी ज्यादा नीचे चला जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे अगर नीचे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस बाहर नहीं जाएगा। इसे हम कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं? न्यू नॉट। न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या है ना, फाई बाय एच और फाई नॉट बाय एच। सिमिलरली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है ना, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट इट इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मैक्सिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर इससे ज्यादा होगा क्या, इंसिडेंट लाइट का ज्यादा वेवलेंथ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं? लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का फॉर्मूला क्या है ना, hc बाय phi। h होगा तो प्लांक कांस्टेंट, c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड phi तो वर्क फंक्शन। नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडिएशन बारे में और पार्टिकल नेचर बारे में दूसरा क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।